کپتان کے سیاسی مخالفین پر زوردار باؤنسرز کہتے ہیں کہ 5 سال پورے کریں گے، حکومتی کارکردگی دیکھ کر اپوزیشن کی دکان بند ہو جائے گی۔ جہلم روڈ کیریج وے سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ اپوزیشن ای وی ایم سے اتنا ڈرتی کیوں ہے۔ انہوں نے کہا کہ لندن میں بیٹھے سیاستدان مہنگے ترین فلیٹس کا ایک ثبوت تک نہ دے سکے۔ کوئی شک نہیں، پاکستان سمیت پوری دنیا میں مہنگائی کا سیلاب آیا ہے۔ سردی ختم، مہنگائی ختم، کپتان نے امید دلا دی۔ لندن کے اندر بڑے بڑے محلوں میں رہ رہے ہیں اور بڑی بڑی گاڑیاں چلا رہے ہیں، یہ سارا یہاں سے پیسہ گیا ہوا، جو آج تک یہ نہیں بتا سکتے کہ جو 4 اربوں روپے کی آپ نے فلیٹس لیے ہوئے لندن میں، ایک ڈاکیومنٹ نہیں دے سکے کہ پیسہ کدھر سے آئے، کیونکہ یہاں سے گیا چوری کا پیسہ۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ جس دن سے ہم آئے ہیں کہتے ہیں جی گورنمنٹ کو گرا دو، آج گئی تو کل گئی، پرسوں گئی۔ وہ کیوں چاہتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ 5 سال کے بعد انشاءاللہ جو گورنمنٹ کی پرفارمنس دیکھی جائے گی، ان کو خطرہ ہے کہ ان کی سیاسی دکانیں بند ہو جائیں گی۔ ابھی یہ دیکھ رہا تھا کہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ہم نے یہ انوگریشن کیا ہاتھ رکھ کے، تو میں حیران ہوں کہ یہ جو اپوزیشن ساری یہ ٹیکنالوجی کا کیوں نہیں ووٹنگ کے اوپر استعمال کر رکے ہوئے۔ حیرت ہے کہ ہماری اپوزیشن کو پتہ نہیں اس پہ کیا پرابلم آ رہی ہے، مشین سے ڈرے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کس چیز سے۔ آیا گیا کہ جناب بڑے ہمارے دور سے پہلے سڑکیں بنی ہوئی، جو آج کل لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دکھ ہزار کرتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان کے حالات بہت برے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو شیخ حسوری بھی کہتے تھے سڑکوں پر آنے پہ۔ 2013 میں 21 میں ہر چیز مہنگی ہو گئی ہے، تیل کی قیمتیں دگنی ہو گئی ہیں 3 مہینے میں۔ خدشہ یہ ہے کہ وہ اور بھی بڑھے گا۔ یہ صرف سردیوں تک ہے، انشاءاللہ مجھے پتہ ہے لوگوں کو مشکل ہے، انشاءاللہ ہم نکالیں گے۔ پارلیمنٹ کا کل مشترکہ اجلاس قانون سازی میں حمایت پانے کے لیے کپتان کی فرنٹ فٹ پر آ کر جادوئی اننگز، روٹے اتحادی مان گئے۔ وزیر اعظم سے ایم کیو ایم وفد کی ملاقات ہوئی، ساتھ دینے کی یقین دہانی کرا دی۔ عمران خان سے اراکین اسمبلی اور پارٹی رہنماؤں کی بھی بیٹھک۔ وزیر اعظم نے سب کو کل کے اجلاس میں شرکت یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ پارلیمنٹ میں عمران خان کو جیت کا یقین ہے۔ دوسری جانب اپوزیشن نے بھی حکومت کو ٹف ٹائم دینے کی پوری تیاری کر لی ہے۔ شہباز شریف کی زیر صدارت اپوزیشن رہنماؤں کا اجلاس ہوا۔ اپوزیشن لیڈر کا کہنا ہے کہ حکومت کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ بلاول بھٹو بھی اسلام آباد پہنچ گئے ہیں، اجلاس میں شریک ہوں گے۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس، حکومت اور اپوزیشن کی تیاریاں فائنل۔ وزیر اعظم عمران خان فرنٹ فٹ پر آ گئے۔ اتحادیوں اور پارٹی رہنماؤں سے اہم رابطے، ملاقاتیں، قانون سازی کے لیے حکمت عملی تیار۔ وزیر اعظم سے ایم کیو ایم رہنما امین الحق اور خالد مقبول صدیقی کی ملاقات۔ ایم کیو ایم نے حکومت کے مشترکہ پارلیمنٹ اجلاس میں مکمل ساتھ دینے کی یقین دہانی کرا دی۔ وزیر اعظم سے سینیٹر علی ظفر اور وزیر قانون فاروق نسیم ملے۔ سینیٹر لیاقت خان ترکئی، رکن قومی اسمبلی عبدالغفار وٹو، غلام بی بی بھروانہ، انجینئر عثمان خان ترکئی کی بھی وزیر اعظم سے سیاسی امور اور ترقیاتی منصوبوں پر گفتگو۔ کیا قانون سازی کے لیے ارکان کی تعداد پوری کر لیں گے؟ پارلیمنٹ سے نکلتے ہوئے وزیر اعظم سے صحافیوں کا سوال، جواب دیا جب کوئی کھلاڑی میدان میں قدم رکھتا ہے تو ہمیشہ سمجھتا ہے کہ وہ جیتے۔ وہ جب قدم رکھتا ہے گراؤنڈ میں وہ ہمیشہ سمجھتا ہے وہ جیتے گا۔ آپ حکومت کو کیسے شکست دیں گے؟ سوال پر اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا بھرپور مقابلہ کریں گے، پوری طرح مقابلہ کریں گے انشاءاللہ۔ اپوزیشن نے نیب آرڈیننسز کو مسترد کرانے کا فیصلہ کیا ہے۔ سینیٹر شیری رحمان نے سیکریٹری سینٹ کے پاس آرڈیننس مسترد کرنے کی قرارداد بھی جمع کرا دی۔ ارکان پارلیمنٹ کی بھرپور حمایت حاصل کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار بھی ان ایکشن۔ وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کی، پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے متعلق مشاورت ہوئی۔ سردار عثمان بزدار نے پنجاب سے تعلق رکھنے والے ارکان پارلیمنٹ کے اعزاز میں اسلام آباد میں عشائیہ دیا۔ بڑی تعداد میں ارکان شریک ہوئے، کل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں شریک ہونے کی یقین دہانی کرا دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بیان حلفی نوٹس کیس میں باقاعدہ توہین عدالت کی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم، ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان، ایڈیٹر عامر غوری اور خبر دینے والے صحافی انصار عباسی کو سوکا نوٹس جاری کر دیا۔ 6 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامے میں قرار دیا گیا کہ اخبار میں چھپنے والی خبر اور بیان حلفی بادی النظر میں عدالتی کارروائی پر اثر انداز ہونے کی کوشش ہے۔ سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم کے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار پر الزامات۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فریقین کو شو کاز نوٹس جاری کرنے کا حکم۔ سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم، ایڈیٹر ان چیف میر شکیل الرحمان، ایڈیٹر عامر غوری اور خبر دینے والے صحافی انصار عباسی کو شو کاز نوٹس جاری۔
चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने 6 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तौहीन अदालत केस में तमाम फरीकैन को आइंदा समाअत पर पेश होने का हुक्म। हुक्मनामे में कहा गया, ये अदालत इजहार राय पर यकीन रखती है। इस किस्म की खबरों से अवाम का अदालतों पर एतमाद उठ जाएगा। फरीकैन अदालत को मुतमईन न कर सके कि उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए। तस्लीम शुदा हकीकत है, तस्दीक के लिए रजिस्ट्रार हाई कोर्ट से राब्ता नहीं किया गया। राना शमीम की ड्यूटी थी कि ऐसा कुछ सुना था तो फौरी तौर पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रिपोर्ट करते। बयान हल्फी से मुतालिक खबर पर चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने केस की समाअत की। राना शमीम की जगह उनके बेटे पेश हुए। अदालत को बताया उनके वालिद राना शमीम की तबीयत ठीक नहीं, लेकिन वो पेश होना चाहते हैं। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने करार दिया, साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम को जाती हैसियत में पेश होना होगा। जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स में कहा, तासुर है कि ये बयान हल्फी जाली है। अदालत ने सहाफी अंसार अब्बासी से इस्तफसार किया, इस हल्फनामे का कोई अदालती रिकॉर्ड नहीं, कब सजा हुई और कब अपीलें दायर की गईं। सहाफी अंसार अब्बासी ने मौकफ अपनाया, जो किया वो सब अदालत की इज्जत के लिए किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपने अदालत पर उंगली उठाई और मुअज़्ज़िज़ जज के खिलाफ स्टोरी की। खबर में जज का नाम न लिखकर पूरी अदालत पर सवाल उठा दिया और अदालत को नुकसान पहुंचाया गया। अगर आप और राना शमीम सबूत पेश न कर सके तो कार्रवाई करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन को शो कॉज नोटिस जारी करते हुए 7 रोज में जवाब तलब कर लिया। आइंदा समाअत 26 नवंबर को होगी। पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम के बयान हल्फी की अदालती तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। कहते हैं कि तीसरा चौथा जज है जो अपनी गुफ्तगू ऑन रिकॉर्ड कर रहा है। कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमीर JUI ने हुकूमत को निशाने पर रखा। कहा, हुकूमत चल नहीं रही, चलाई जा रही है। चलने और चलाने वाले दोनों को जानते हैं। नाअहल हुक्मरान इक़्तिदार को तूल देने के लिए नाजायज तरीके अपना रहे हैं। जाली पार्लियामेंट को ऐसी कानून साजी के लिए तैयार कर रही है कि आइंदा भी इलेक्शन में बड़ी आसानी के साथ वो धांधली कर सके। छोटी जमातें जो उनकी इत्तेहादी हैं, उनको रियासती इदारे दबाव में लाकर उनकी गर्दन मरोड़ कर और उनके गर्दनों पर बूट रखकर उनको मजबूर कर रहे हैं कि आपने इजलास में जाना है। ये सब कुछ 19 नवंबर से पहले करना है। सारे मामले को मशकूक बनाता है। आईनी और कानूनी रास्ता इख्तियार करें। हुकूमत चल नहीं रही, हुकूमत चलाई जा रही है। हम चलाने वालों को भी जानते हैं और चलने वालों को भी जानते हैं। हुकूमतें चलनी चाहिए अवाम के सहारे से। साबिक चीफ जज का बयान हल्फी। वफाकी वज़रा ने नून लीग को आड़े हाथों ले लिया। फवाद चौधरी ने मामला नून लीग की साजिश करार दिया। इल्जाम आयद किया कि साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान लंदन में नवाज शरीफ के खर्चे पर रह रहे हैं और हसन नवाज उन्हें डील कर रहे हैं। मुराद सईद ने कहा, जब जब उन्हें अदालतों ने बुलाया ये कोई नया स्कैंडल तराश कर ले आते हैं। हम देखते हैं नवाज शरीफ की या मरियम नवाज की कोई पेशी होती है, उससे पहले एक कोई साजिश जो है इस तरह की गढ़ी जाती है और इसमें कोई शुबह ही नहीं है कि वो लंदन में नवाज शरीफ के खर्चे के ऊपर जो है वो रह रहे हैं। उन्होंने वहाँ पे एफिडेविट दिया, उसकी फीस भी नवाज शरीफ की फैमिली ने अदा की। जब भी इनकी तारीख लगती है तो उससे पहले अब इसी किस्म के बयान या बनाने की कोशिश करें। अगर इतने सच्चे हैं, इतने अच्छे हैं, तो आज भी पूरा टब्बर लंदन में वफरूर और इश्तियारी क्यों बैठा हुआ है? साबिक चीफ जज राना शमीम के बयान को मानना पड़ेगा। हलफनामे को पूरी दुनिया सच मानती है। राना शमीम झूठ बोल रहे हैं तो बदतरीन सजा मिलनी चाहिए। अगर सच बोल रहे हैं तो साकिब निसार को जेल जाना चाहिए। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की घनगरज कहते हैं, अगर नवाज शरीफ जेल जा सकते हैं तो साकिब निसार क्यों नहीं? पाकिस्तान के उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज को फ़ोन किया कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जो बेल है वो इलेक्शन से पहले नहीं होनी चाहिए। अगर चीफ जस्टिस अपना नाम क्लियर ना कर सकें तो कौन इन अदालतों पर यकीन करेगा? आप मुल्क के चीफ जस्टिस हैं, सफाई दें। वही आला अदलिया जो एक वज़ीर आज़म को अकामे की फीस ना लेने पर खुद ट्रायल करके निकाल सकती है, अपने चीफ जस्टिस से नहीं पूछ सकती कि तुम इलेक्शन में मुदाखलत क्यों कर रहे थे? आज इस मुल्क की आला अदलिया अदालत में है। मुझे उम्मीद है उनको इसका एहसास हो।
साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान के बयान हल्फी पर आसिफ जरदारी का पुराना जख्म ताज़ा हो गया। नैब इस्लामाबाद में पेशी के मौके पर कहा वो पहले ही ये रास्ता देख चुके। जस्टिस कयूम के साथ सैफुर रहमान और कुछ और दोस्तों की टेप थी। अमेरिका में प्रॉपर्टी केस में साबिक सदर की जमानत कबल अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए उन्हें 5 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने की हिदायत कर दी। साबिक चीफ जज के बयान हल्फी पर आसिफ जरदारी का पुराना जख्म ताज़ा हो गया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेशी पर सहाफियों के सवाल पर कहा वो पहले ही ये रास्ता देख चुके हैं। जस्टिस कयूम के साथ टेप थी सैफुर रहमान और कुछ और दोस्तों की। तो पहले ये रास्ता देख चुके हैं। आपको याद है कि एक टेप थी सैफुर रहमान की और कुछ और दोस्तों की साथ जस्टिस कयूम के साथ, ये राह हमारी देखी। हुकूमत का काउंटडाउन शुरू होने के सवाल पर कहा फिलहाल तो हुकूमत को लाने वाले अपनी गलती का एतराफ कर रहे हैं, अब गलती को सुधारा कैसे जाएगा ये अल्लाह को मालूम है। जो उसको लाए हैं तो वो एडमिट कर रहे हैं कि गलती हो गई, मगर अब कैसे करेंगे गलती को दुरुस्त, ये अल्लाह को पता और तेरे को पता। एहतसाब अदालत ने अमेरिका में प्रॉपर्टी केस में साबिक सदर की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए उन्हें 5 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड रेफरेंस में मरीम नवाज और कैप्टन सफदर की अपीलों पर समाअत कल होगी। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी समाअत करेंगे। फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की बरियत के खिलाफ नैब अपील पर भी कल समाअत होगी। चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त करने के लिए अहम सियासी रहनुमाओं के काफिले की क़यादत से राब्ते। साबिक सदर आसिफ जरदारी का स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन के साहबजादे चौधरी सालिक हुसैन को फ़ोन। चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की गई। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने भी चौधरी सालिक हुसैन से फ़ोन पर रब्ता किया। मरीम नवाज ने कहा चौधरी शुजात हुसैन को अल्लाह सेहत दे। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज ने चौधरी शुजात हुसैन की अयादत की। हमजा शहबाज ने चौधरी परवेज़ इलाही MNA चौधरी सालिक हुसैन से अस्पताल में खुसूसी मुलाकात की। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में मुनक़िदा तकरीब में लिल्लाह ता जेहलम रोड का संग बुनियाद रख दिया। 128 किलोमीटर 2 रोया सड़क 16 अरब रुपए की लागत से तामीर होगी और 30 माह की मुद्दत में मुकम्मल होगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं कि जेहलम में 130 मनसूबों पर काम जारी है। आज़म साहब इफ्तिताह कर रहे हैं लिल्लाह जेहलम ड्यूल कैरेजवे का। चकवाल, खुशाब, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात और मीरपुर के लोगों के लिए खुशखबरी। वज़ीर आज़म ने लिल्लाह ता जेहलम रोड का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब में वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, सदर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, वफाकी वज़रा और जेहलम के गयूर अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अपने खिताब में वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा हुकूमत ने रोड नेटवर्क के मंसूबे पर तवज्जो मरकूज की है। पूरे पंजाब में सड़कों का जाल बिछा रहे हैं। इससे कामी लोगों को रोजगार भी मिलेगा और उनकी आमदोरफ्त की सहूलतें भी मैसर होंगी और एक माशी तरक्की का नया दौर इंशाअल्लाह शुरू होगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा लिल्लाह ता जेहलम डुअल कैरेजवे मंसूबा इलाके के अवाम की किस्मत बदल देगा। रोड नेटवर्क बनने से एक पूरा नया इलाका दस्तयाब हो जाएगा जिसमें डेवलपमेंट हो सकेगी और इसके नतीजे में हमारे जो पूरा इलाका है वो इस्लामाबाद का एक पेरिफेरी बन जाएगा, इस्लामाबाद का मुल्का इलाका बन जाएगा और इससे एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो मुस्तफीद होगी। इस सड़क की तामीर से सयाहत के फरोग, काश्त के फार्म तो मार्केट रसद, रोजगार के मौके में इजाफा और मुआशी तरक्की में मदद मिलेगी। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान पर बरहम बोले 3 साल खामोश क्यों रहे। राना शमीम के खिलाफ मिसकंडक्ट का केस होना चाहिए। अपोजिशन वालों को भी आड़े हाथों लिया। बोले अपोजिशन वालों में मुस्ताफी होने की भी इखलाकी जुर्रत नहीं, इदारों पर हमले करते और इल्ज़ाम लगाते हैं। हसन खावर ने पंजाब हुकूमत को अपनी आइनी मुद्दत पूरी करने के हवाले से कहा कि इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए हैं। सिंध असम्बली ने सूबे में तजावज़ात के मामले पर कानून साजी के लिए करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद के मतन के मुताबिक ऐसी तमाम इमारतें जो हुकूमती इदारों से मंजूरी के बाद तामीर की गई हैं उन्हें कानून साजी के जरिए तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए ताकि इंसानी अलमिया पैदा ना हो। अपोजिशन ने करारदाद को मुस्तरद करते हुए ईवान में शोर शराबा किया। करारदाद की कॉपियाँ फाड़ कर स्पीकर पर उछाल दी। अपोजिशन ने ईमान, नाजिम जोगियो और फहमीदा सियाल के वाक़े पर भी शदीद एहतजाज किया। खुर्शीद रहमानी।
सिंध असम्बली का एक और हंगामा खेज इजलास, तजावुजात के मामले पर कानून साजी के लिए करारदाद मंजूर। पीपल्स पार्टी की रुकन निदा खोड़ो की करारदाद के मतन के मुताबिक ऐसी तमाम इमारतें जो हुकूमती इदारों से मंजूरी के बाद तामीर की गई हैं, उन्हें कानून साजी के जरिए तहफ्फुज दिया जाए ताकि इंसानी अलमिया पैदा न हो। अपोजिशन ने करारदाद को मुस्तरद करते हुए ऐवान में शोर शराबा किया और करारदाद की कॉपियां फाड़ दी। सूबाई वजीर इत्तलात सईद गनी ने कहा, अगर मैं लोगों की छतों को नहीं बचा सकता तो हमें ऐसी असम्बली में रहने का कोई हक नहीं, मैं इस्तीफा दे दूंगा। सर अगर ये फैसला हो गया कि सारे घर तोड़ने में यहाँ खड़े होकर कह रहा हूं मैं असम्बली छोड़ दूंगा सर, बाजार तो छोटी सी बात है। अपोजिशन अरकान ने कहा, हुकूमत अपने काले करतूतों को एनआरओ दे रही है। 13 साल से आप इक्तदार के अंदर हैं और आज आप चाहते हैं कि जिस तरीके से शराब को शहद में तब्दील कर दिया गया, इसी तरीके से चोरों को छोड़ दिया जाए। अपोजिशन ने नाजिम जोखियो और फहमीदा सयाल के कातलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा किया। इजलास जुम्मे तक मुलतवी कर दिया गया। कैमरामैन नुमान खान के साथ खुर्शीद रहमानी, न्यू न्यूज कराची। पाकिस्तान को तब्दीली महंगी पड़ गई। साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीर हैदर होती तब्दीली सरकार पर बरस पड़े। लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, इमरान खान से मुल्क नहीं चलेगा, उन्हें कोई और काम दें। इमरान खान पाकिस्तान की नुमाइंदगी और खिदमत नहीं कर सकते। हफ्ते के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए न्यू पाकिस्तानियों।